केमिस्ट्री की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका इन द चैनल केमिस्ट्री बाय कुणाल सर चैंपियंस. आई एम कुणाल सर with 7 years of teaching experience in state, CBSE and ISC board, with state board examinations as well as with competitive examinations like G and NEET. So this video is particularly created for English medium students for unit number 4, chemical kinetics. Correct. And as the thumbnail said, this is the single shot or one shot theory sessions. Now, single shot or one shot theory session doesn't mean I will complete the whole chapter in single session or in 1 hour, because it's next to impossible. Correct. Right. So single shot or one shot theory session means I will complete the theory of whole chapter continuously without the interruption of any type of examples or MCQ. Correct. Now, see, the complete package of unit number 4 consists something around 3 videos in which all the theories in topic wise, question wise, I will definitely will make the complete. And it's my goal that you digest the chemistry not here but here. अच्छा, क्यों? क्योंकि इस बात का गवाह पूरी कायनात देती है कि भाई कोई व्यक्ति वस्तु एक बार यहाँ उतर जाए तो फिर उसे वहां से निकालना नामुमकिन है. करेक्ट. So let's begin the show with full on positivity, full on energy, and this is the first session of unit number 4, chemical kinetics. Correct. And here you can see the methodology of the completion of this unit or for the completion of this section. See, number one, you get each and every explanation of concept. First I will explain the concept topic wise, question wise. Number 2, each and every question you get with mark distribution. इससे आपको ये पता चलेगा कि भाई कौन से क्वेश्चंस में आपको कितना कंटेंट बोर्ड को प्रोवाइड करना है. करेक्ट. एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट इज हैंड रिटन नोट्स, माय पर्सनलाइज्ड हैंड रिटन नोट्स. During the appearance of handwritten notes, you can stop the video and write the answers. One more thing, never ever make the fair note during the video. First make the rough note, then memorize it, and then you can make the proper fair note. Yes, but fair note is compulsory for the examinations. Correct. So, to make you a bigger and bigger in chemistry, let me become, yes, let me become smaller. So yes, is it okay? Right. So unit number 1, chemical kinetics. See, in chemistry we have total 3 parts: physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry. This chapter belongs to physical chemistry. So in this chapter you get the derivations of some of the equations as well as examples. Correct. So as this is a theory session, we are only focusing on questions and derivations of equations. Correct. So the first point, the first topic is what exactly the chemical kinetics is. And this question comprises of only 1 mark, or I can say it's a kind of definition. Now see, chemical kinetics is the branch of physical chemistry. Physical chemistry which focus on the study of number 1, rate of reaction. That is the main part of this chapter. The rate of reaction or speed of reaction, or you can say velocity of reaction. Correct. Number 2, factors factors affecting on rate of reaction. There are some positive factor, there are some negative factor. Positive factor increase the rate of reaction, negative factor, yes, decrease the rate of reaction. So factors affecting on rate of reaction. And finally number 3, mechanism of reaction. But mechanism part is given in only a very small portion at the last page of your textbook. And see, mechanism part is actually the main part of organic chemistry and not the physical chemistry. Correct. Now, so this is about the study of chemical kinetics. It's a branch of physical chemistry which deals with the rate of reaction, factors affecting on rate of reaction, and mechanism. So here is the answer. And yes, one more thing. Actually, handwriting credit of this
session of this complete unit number 4 session goes to one of my student, Mitali, because her handwriting is truly beautiful and my handwritings are little bit of dangerous. है ना? Okay, so this is the answer. You can stop and write. Let's move towards the question number 2. The question number 2 is about which are the main important points studied by the chemist in the chemical kinetics department. So number 1, see, to study any reaction you required two main branch of chemistry. Number 1 is thermodynamics, that you have already completed in standard 11 semester 1 unit number 6, and number 2 is this branch called, yes, chemical kinetics. Correct. अब बात यहाँ पे ये बनती है कि थर्मोडायनेमिक्स अपना कंप्लीट हो चुका है, केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, कोई बोलेगा कि नहीं थर्मोडायनेमिक्स छोड़ दो, हम तो सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स के प्रिंसिपल पे फोकस करेंगे, तो यू कैन नॉट हैव द कंप्लीट स्टडी ऑफ एनी रिएक्शन. So to have the complete study of any reaction, thermodynamics and chemical kinetics, both branches moves simultaneously. Correct. But in particular reaction, there are 3 points any scientist or any chemist want to study. The first and the most important point, the reaction occurs or not, and that is called feasibility of reaction. That is called feasibility of reaction, or you can also say in the words of thermodynamics, spontaneity of reaction. Feasibility of reaction means in a given condition of temperature and pressure, reaction occurs on its own or not. Mane the reaction is spontaneous or non-spontaneous. Let's take a very simple domestic example, making of tea. Chai banana, it's a spontaneous reaction or non-spontaneous reaction? Non-spontaneous reaction. At room temperature and room pressure, tea cannot prepare by its own, but the spoilage of milk, दूध का milk का बिगड़ना, it's a spontaneous reaction because at given temperature and pressure, it occurs by on its own. So, thermodynamics will give the answer of this question. That reaction is spontaneous or non-spontaneous. In thermodynamics, there were main one state function delta G. Delta G बोले तो change in free energy. If value of change in free energy is less than 0 or if it is negative, then reaction occurs on its own. And if value of delta S total means entropy of system plus entropy of surrounding. If it is greater than 0 according to second law of thermodynamics, if it is greater than 0, then again the reaction is feasible. Correct. So for feasibility of reaction, you do not need to enter in chemical kinetics. Now, second number, extent to which a reaction occurs. What is the meaning of this point? Extent to which a reaction occurs means either the reaction is completed up to 10% or the reactant utilized by 70%. See, reaction is completed up to 70% means what? After the utilization of 70% reactants, the reaction attained equilibrium. Now what is equilibrium? The state at which the concentration of product and reactant becomes constant with respect to time is known as equilibrium. So that is known as extent of reaction. Means either the reaction is completed up to 10%, 50% or 70%. Correct. Third and the most important point, which is the purely area of chemical kinetics, and that is the rate of reaction, or I can say velocity or speed of reaction. Now what is speed of reaction? See, if the reaction starts at 9 a.m. and if you get the equilibrium, reaction gets the equilibrium at 9:45 a.m. What is the meaning of this timing? Within 45 minutes, reaction attains equilibrium means the rate of reaction is 45 minutes. Correct. Speed of reaction, velocity of reaction means a time taken by the reaction to reach the equilibrium. It's called speed of reaction. So again, this is a simple question. Generally आज तक ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, बट मान लो किसी की इच्छा हो गई तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में हो सकता है. करेक्ट. नाउ so this is the answer. You can stop and write. Correct. In very beautiful handwriting. Question number 3. Give the different types of reaction based on speed of reaction. See, speed of reaction means time taken by the reaction for the completion.
माने रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए 1 ईयर ले रहा है, 10 ईयर्स ले रहा है, 1 डे ले रहा है, 1 आवर ले रहा है, 1 सेकंड ले रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ रिएक्शन. So based on speed or rate of reaction, the reaction can be subdivided into three parts. Which are those three parts? Number one, very slow reaction. कछुआ छाप रिएक्शन, धीमे धीमे हौले हौले चलने वाला रिएक्शन. देन स्लो रिएक्शन, स्लो और moderate reaction. And the third part, very very fast reaction, very fast reaction, and it's like our bike, dum 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 dum. Fine. Number one, very slow reaction. See, now in each and every topic you get definition and example. दो तरीके हैं डेफिनेशंस याद रखने के. देखो, पहला तरीका आप डेफिनेशन का रट्टा लगाओ और एग्जांपल का भी रट्टा लगाओ, और दूसरा तरीका है आप एग्जांपल को माइंड में सेट करो. डेफिनेशन ऑटोमेटिक माइंड स्क्रिप्ट कर लेगा. और मेरा तरीका कौन सा है, मैं खुद अगर याद रखता हूँ तो मैं पहले एग्जांपल याद रखता हूँ, उसके बाद ऑटोमेटिक डेफिनेशन मेरा माइंड स्क्रिप्ट कर लेता है एक बार पढ़ने और समझने के बाद. करेक्ट. तो चलिए, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, डेफिनेशन. अच्छा, डेफिनेशन याद करवाने के लिए मैं आपको एक स्कीम देता हूँ. देयर आर सम डेफिनेशंस व्हिच आर इन फैक्ट बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू फ्री. एक डेफिनेशन कर लो, उसमें थोड़े से वर्ड चेंज कर लो, बाकी के दो ऑटोमेटिक बन जाएंगे. करेक्ट. सो लेट्स फर्स्ट टेक द एग्जांपल ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन, corrosion of iron. So very slow reaction depends on quality of your paint or quality of iron. Corrosion of iron, so depends on these two parameter. Iron can be corroded in either 1 year, 10 year or 15. Correct. So corrosion of iron or any metal is a very slow reaction, कछुआ छाप reaction है ना. Then slow or moderate reaction, digestion. डाइजेशन को होने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 ईयर, 2 ईयर? ना, इट टेक्स समथिंग अराउंड 4 to 5 years. करेक्ट. डाइजेशन. सेकंड रिएक्शन, एग्जांपल देखते हैं. C12H22O11, कौन है ये? दिस इज नोन एज सुक्रोज, सुक्रोज और टेबल शुगर, है ना. सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम. हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है? इन एनी रिएक्शन इफ इट सेड हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस माने addition of water in given reactant. So in presence of acid or invertase enzyme, sucrose converted into C6H12O6 plus C6H12O6. तो आप बोलोगे कि भाई 2C6H12O6 क्यों नहीं लिख देते? But we cannot write. Why? Because this compound is glucose and this compound is fructose. Structure and name are different, and that's why we have to write C6H12O6 plus C6H12O6. So again, this is the slow or moderate reaction. Very slow reaction takes 1 year, 2 year, 10 year, 15 years. Correct. For example, बालों के सफेद होने का प्रोसेस 25 years to 40 years ले लेता है. Correct. So digestion is very slow reaction का यूनिट कौन सा है? It can be in years. Slow or moderate reaction, it can be in minutes or it can be in hours. Now fast reaction. Definition पे आते हैं अपन. Fast reaction. नंबर वन, जो सबसे पहला रिएक्शन आपने 11th की लैब में जाके किया था वो था न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन, जैसे ही NaOH की पहली बूंद HCl को छूती है तुरंत न्यूट्रलाइजेशन होता है, एसिड प्लस बेस इट कन्वर्ट्स इनटू सॉल्ट एंड वाटर. सेकंड एक और एग्जांपल लेते हैं. AgNO3 plus NaCl, on addition of NaCl in AgNO3, you get the white precipitates of AgCl plus NaNO3. So this is again a very fast reaction. It occurs in second, microsecond, millisecond. Correct. Now let's come to the definition. What is very slow reaction? The reaction that takes much longer time is known as very fast reaction. Slow reaction, the reaction which takes little time for completion, is known as slow reaction, and that the reaction which takes very little time, seconds, for completion, it's known as very fast reaction. देखो, तीनों के तीनों डेफिनेशन में मैंने सेम कॉपी पेस्ट किया, और जो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में वर्ड लिखा है बस वही चेंज किया, बाकी तीनों के तीनों डेफिनेशन कॉपी पेस्ट. मैं फिर से एक डेफिनेशन बोल देता हूँ. चलो एक काम करते हैं. Let's move towards the handwritten notes. Correct. So एक definition याद रखो. This is the scheme like buy one get two free.
द रिएक्शन दैट टेक्स मच टाइम फॉर कंप्लीशन। अब मच टाइम की जगह क्या लगा दोगे आप, लिटिल टाइम लगा दो, और लिटिल टाइम की जगह फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगा दो, लिटिल टाइम की जगह फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगा दो। बस ये जो अंडरलाइन किया है उसको चेंज करो, बाकी कॉपी पेस्ट कर लो, एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए। करेक्ट। सो दिस इज अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, आप सोच रहे हो कि मार्क तो बोले नहीं, तो ये लोग बोल देते हैं इट्स ओनली ऑफ 2 marks, एंड अगेन रिएक्शन, ये क्वेश्चन आज तक कभी आया हुआ नहीं है। करेक्ट। नाउ डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स यूनिट। दिस इज ओनली अ 1 marker but important question. Now what is rate of reaction or speed of reaction? See, initially it's called speed or velocity of reaction, but then after it's symbolized, it's named as rate of reaction. एक बात बताओ, फिजिक्स में आप वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हो? तो वेलोसिटी के लिए आप इक्वेशन लिखते हो कि भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। करेक्ट। अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस विद इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। बस तो यहाँ पे वही लिखना। लेकिन रिएक्शन में क्या हो रहा है, अब उसके लिए एक छोटा सा एक रिएक्शन लेते हैं। R stands for reactant and P stands for product. During the starting of reaction, concentration of reactant is maximum and concentration of product is zero. With proceeding of time, concentration of reactant goes on decreases and concentration of product goes on increases. एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। देखो, एक एग्जांपल अगर दिमाग में बैठ गया ना, तो उसपे सारे डेफिनेशन कंसेप्ट आप लर्न कर सकते हो। मेकिंग ऑफ टी, इनिशियली उसमें आपने रिएक्टेंट्स लिए, मिल्क लिया, चाय पत्ती लिया, अदरक लिया, मसाला लिया। करेक्ट। अच्छा, उसके बाद क्या करोगे, उस इनिशियली इन सबका कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, चाय का कंसंट्रेशन कितना है, 0 है। अब आपने सब कुछ मिक्स कर दिया और बर्नर ऑन कर दिया। करेक्ट। अब बर्नर ऑन करने के बाद कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क, चाय पत्ती एंड मसाला, इट गोज ऑन डिक्रीजेस। वाओ, व्हाई? बिकॉज ईच एंड एवरी सब्सटेंस मिक्स विद ईच अदर इन पर्टिकुलर अमाउंट। करेक्ट। तो अभी क्या होगा कि धीरे 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 प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट गोज ऑन इंक्रीज। बेसिकली अपन बात क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन किसका, कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अच्छा, कितने टाइम में भैया आप चाय बना दोगे, तो टाइम इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस आपका जो वेलोसिटी का डेफिनेशन है वो सेम कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ स्पीड की जगह आप कंसंट्रेशन चिपका दो, हो गया डेफिनेशन। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट in unit time is known as rate of reaction. Correct. Now unit of reaction, because here the demand of question is unit also. What is the unit of concentration? Now you are aware that unit of concentration is mole into liter inverse, or you can also write mole per liter. Correct. Divided by time. Let's take a time in second. Second. Correct. So now you can write the unit mole into liter inverse into second inverse. So this is the unit of rate of reaction. Let's pack it in a small gift. करेक्ट। बस ये हो गया 1 मार्कर। करेक्ट। अच्छा, 1 मार्कर तो आते नहीं है, बट 1 मार्कर अगर मैं बोलूँ तो उसका मतलब हो सकता है कि 2 मार्क में 2 डेफिनेशन के फॉर्म में आए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछना हो तो किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हो। नाउ so this is about question number 4 and here it's the answer. So stop and write and let's move towards question number 5. यहाँ से केमिकल काइनेटिक्स के लॉजिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है एंड दिस क्वेश्चन कैन बी कंप्राइजेस ऑफ maximum 3 marks. Maximum 3 marks. Correct. For one mole reactant and one mole product, give the equation for number 1 average rate of reaction and number 2 instantaneous rate of reaction. इस क्वेश्चन से आपका केमिकल काइनेटिक्स का जो बेसिक्स है वो धीरे धीरे अब ग्राउंड फ्लोर बनता जाएगा। करेक्ट। These are the pillars, base part of this chapter. Now see, here it's already said that you have to take only 1 mole reactant and 1 mole product. So let's, reactant is R. Here we have to mention that R is equal to reactant and P is equal to product. So A, B, C ये सब ना लेकर R और P ले लेते हैं. So let's make it very simple. Correct. This is 1 mole and this is again 1 mole. Okay. करना क्या है? करना अपने को ये है कि भाई इस रिएक्शन के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वेशंस डिफाइन करना है। तो उससे पहले भाई अपने को ये तो पता होना चाहिए व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ
हाँ, व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन? ठीक, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि भाई आप अहमदाबाद से बड़ौदा जा रहे हो एंड अहमदाबाद से बड़ौदा जाने का टाइम अगर आप बाइक से निकल रहे हो धूम धूम बाइक पे तो समथिंग अराउंड 1 आवर लेता है। 9 बजे आपने स्टार्ट किया, 10 बजे आप बड़ौदा पहुंच गए। अब 9:15 से 9:30 के बीच में, आई रिपीट बिटवीन 9:15 टू 9:30, in between this time your velocity or your rate is called average rate of reaction. So to define the average rate of reaction we have to take time intervals, time interval. तो ये हो गया आपका definition. The rate of reaction defined with respect to particular time interval from to. तो कहीं पे भी from to आता है, that means it is known as average rate of reaction. कहीं पे भी अगर from to आता है so that becomes a final value minus initial value. So now see, rate of or average rate of reaction is symbolized as, rate of reaction is symbolized as small r and average rate of reaction is symbolized as RAV is equal to. अब जहां जहां बात होती है फाइनल एंड इनिशियल वैल्यू की, तो अपन मान लीजिए कि भाई अपना इनिशियल कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का R1, हो सकता है 10 मोल पर लीटर। फाइनल कंसंट्रेशन है मान लेते हैं R2, R2 9:15 पे, सॉरी R1 9:15 पे, तो इसको अपन T1 बोल देते हैं एंड R2 9:13 पे, तो इसको अपन T2 बोल देते हैं। करेक्ट। अब ये जो डिफरेंस आया, डिफरेंस इज सिंबलाइज्ड एज डेल्टा। डेल्टा मतलब अ डिफरेंस बिटवीन अ फाइनल एंड इनिशियल वैल्यू, so it's known as delta R upon delta T. Now your side stick to this sign, minus sign. Why it's minus? Because with respect to time concentration of reactant goes on decreases, and mathematically if something is decreases then according to maths teacher it's symbolized as minus sign. So minus sign indicates that the rate of reaction goes on decreasing. Now what is the meaning of this term? The meaning of this term is change in concentration, or now you can say decrease in concentration of reactant with respect to time. Now, in the same way, rate of reaction, this is the rate of reaction with respect to reactant. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के रेफरेंस में अपन एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर सकते हैं एंड दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। करेक्ट। इसका अपन आगे अभी थोड़ी देर में ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। नाउ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। करेक्ट। इंक्रीज हो रहा है तो फिर अपन आगे प्लस साइन लगाएंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन भाई कितना है, तो मान लेते हैं कि भाई इनिशियल कंसंट्रेशन है P1, फाइनल कंसंट्रेशन भाई कितना है, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो फाइनल कंसंट्रेशन है P2 एंड इनिशियल कंसंट्रेशन है P1, P2 concentration at time T2 and P1 concentration at time T1. So this is the average rate of reaction with respect to time and difference in interval is symbolized by delta. अच्छा, why? आप बोलोगे कि भैया स्क्वायर ब्रैकेट की जगह हम राउंड ब्रैकेट करें तो आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, ये मेरे पीछे प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? दिस स्क्वायर ब्रैकेट एक्चुअली इट इंडिकेट्स द एक्टिव मास। इनिशियली कंसंट्रेशन को केमिस्ट्री में एक्टिव मास बोला जाता है, तो स्क्वायर आप कंसंट्रेशन नहीं लिख के स्क्वायर ब्रैकेट लिख रहे हो, सो इट्स अ सिंबल ऑफ कंसंट्रेशन। तो डेल्टा P by डेल्टा T, correct. So plus delta P by delta T. Why? Because concentration of product goes on increases. So this is about the average rate of reaction with respect to product. Now we are going to draw the graph. अच्छा, अब जब भी ग्राफ आता है तो स्टूडेंट्स का सबसे पहला कंफ्यूजन मुझे बताओ क्या होता है? कि भाई हम हमेशा भूल जाते हैं या कंफ्यूजन में रहते हैं कि y एक्स पे क्या ले और x एक्स पे क्या ले। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक दे रहा हूं। इस चैप्टर के सारे ग्राफ में, एक आध को छोड़कर सारे ग्राफ में, अच्छा मुझे एक बात बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन में अपन ने इक्वेशन क्या लिखा था? रेट ऑफ रिएक्शन में अपन ने इक्वेशन लिखा था, क्या लिखा था? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। क्या बोला पहले? क्या बोला आपने? बोला कंसंट्रेशन। तो ये लो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो जो पहला है उसको y एक्स पे टिका दो और जो बाद में है उसको x एक्स पे टिका दो। भाई हो गया ये बात। तो ऑन y एक्सिस वी हैव कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर एंड ऑन x एक्सिस वी हैव time. Now see, concentration of reactant is maximum initially, product it's 0 initially. Now with respect to time, with proceeding of time 9, 5, 9, 10, 9, 50,
with proceeding of time, this concentration of reactant goes on decreases. A time comes when it becomes a constant with respect to time, and this time is actually known as saturated time or equilibrium time. हालांकि ये जो टॉपिक है, ये मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्विलिब्रियम, इट्स नॉट द एरिया ऑफ दिस चैप्टर, करेक्ट। तो ये इक्विलिब्रियम वाला आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट। इसके बाद जब तक आप कोई एक्सटर्नल पैरामीटर में चेंज नहीं करोगे तब तक ये कांस्टेंट रहेगा। नाउ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना जितना डिक्रीज होता डिक्रीज होता जाएगा उतना उतना भाई प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा, करेक्ट। और जहां पे रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है वहां पे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन भी इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। नाउ व्हाट अबाउट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन? तो एट टाइम t1 द concentration of reactant is R1 and concentration of product is R2. Concentration of product, P for product, so it's P1. I already told you this is, it's like a time 9:15, correct? Okay, and at time T2 the concentration of reactant decreases and it becomes R2. At time T2 concentration of product is higher than P1 and it's symbolized as P2. So this is the graph, correct, concentration versus time. Now let's talk about इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो फिर से वही एग्जांपल पे जाते हैं, आप अहमदाबाद से निकले हो बड़ौदा जाने के लिए, करेक्ट, और आप 9:25 पे एग्जैक्टली, और 9:25 आप कहां पे थे? दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कि भाई आप एग्जैक्टली 9:25 पे या 9:35 पे आपका दम स्पीड, दुम स्पीड कितना था? That is called instantaneous rate of reaction. Definition: a rate of reaction at particular instant of time. At particular instant of time is known as instantaneous rate of reaction. Correct. So now let's move towards the graph. Just a second. Okay. Instantaneous rate of reaction is symbolized as RINST. So now let's move towards the important graph of instantaneous rate of reaction. सबसे पहले y-axis and x-axis, चलो अभी आप बताओ y-axis पे क्या लेना है, x-axis पे क्या लेना है। अभी अपन ने कॉमन कॉपी पेस्ट कर दिया अपने ब्रेन में कि भाई इस चैप्टर के सारे ग्राफ में y-axis पे अपने को क्या लेना है, हाँ यस कंसंट्रेशन, और x-axis पे क्या लेना है, यस प्रोडक्ट, करेक्ट। अच्छा अभी जो अपन ने इससे पहले वाले स्लाइड में जो ग्राफ ड्रॉ किया, बताओ उसमें क्या किया अपन ने? उसमें y-axis पे कंसंट्रेशन लिया था और x-axis पे टाइम लिया था, वही यहाँ पे करेंगे, लेकिन यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो ग्राफ है वो अलग अलग ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के रेफरेंस में अपने को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी इसी ग्राफ पे फिर से डिफाइन करना है, करेक्ट। तो अच्छा okay fine, see on y-axis we are going to take concentration, on x-axis we are going to take time, but again it's on y-axis it's concentration, it's reactant concentration. तो पहले ये जो ग्राफ है वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के रेफरेंस में बनेगा, करेक्ट। चल अभी फिर से एक बार मेरे को याद करवा दो कि भाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? यस, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजेस। अच्छा ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा बिकॉज इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इट्स अ काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसको थोड़ा सा अच्छे से, आपको जितना आप अच्छे से इसको कर्व फॉर्म में ड्रॉ कर सको उतना ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पे एक टेंजेंट भी अपने को फिर बाद में ड्रॉ करना पड़ेगा, करेक्ट। नाउ first we are going to talk about the average rate of reaction. So rate of reaction in particular interval of time t1 and t2. अच्छा आप बताओ कि अगर मैं t1 को ऐसे एक्सटेंड करता हूँ तो मेरे को r1 कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा, तो दिस इज r1, करेक्ट। एंड अगर मैं t2 को यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ तो अपने को r2 कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा, तो दिस इज अगेन r2। अच्छा अब ये जो एरिया है इस एरिया का वैल्यू अपने को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देगा। तो नाउ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड, इज सिंबलाइज्ड एज RAB, और इसका इक्वेशन ऑलरेडी अपन सीख चुके हैं, माइनस
डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस, बोलो R1 माइनस R2 के R2 माइनस R1। बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू कौन सा है R2 और इनिशियल वैल्यू कौन सा है R1। बस हो गया ये, डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ऊपर भी 21 नीचे भी 21, तो ये हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन? A rate of reaction at a particular time, instant time, is known as t time, is known as instantaneous rate of reaction। अब उसको आप कैसे निकालोगे? तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से पास होता हुआ एक लाइन ड्रॉ करो, एंड दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट। ये लाइन इस पॉइंट को छूना चाहिए, करेक्ट। अच्छा, फिर क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली इस पॉइंट को कवर करता हुआ यहाँ पे एक स्लोप का वैल्यू अपने को निकालना पड़ेगा। तो ये जो स्लोप का वैल्यू होगा, it gives the value of Ri and St, that is called instantaneous rate of reaction। And instantaneous rate of reaction mathematically is actually called differential rate of reaction। So it's like minus dr upon dt। अब आप बोलोगे कि भाई इसका वैल्यू कैसे निकाले? R2 अपन R1 कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, because it's not an interval। तो यहाँ पे जो स्लोप मिलेगा, स्लोप का माइनस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी अपन क्या करने वाला है? नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कंसंट्रेशन ऑफ यस, इट्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। चलो, तो y एक्स पे ले लेते हैं अपन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। अच्छा, ये कंसंट्रेशन आपको पूरा लिखना है, एंड एक्स एक्स पे अपन ले लेते हैं टाइम। एज यूजुअल y एक्स और x एक्स पे तो वही कॉपी पेस्ट है, सारे ग्राफ में मैंने पहले ही बोला। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट गोज ऑन इंक्रीजेस। इसमें ये जो कर्व है वो और भी अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा, और एक जगह जाकर आपको इक्विलिब्रियम भी दिखा देना है। चलिए, तो सबसे पहले एज यूजुअल जैसे अपन ने आगे डिफाइन किया, T1 टाइम एंड T2 टाइम, करेक्ट। तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट T1, इट्स कॉल्ड P1, और ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड P2। और ये जो एरिया है, ये अपने को क्या देगा? यस, इट गिव्स एन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। सो RAV इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा, डी कहां से आ गया? प्रिंटिंग मिस्टेक। डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस, क्या लिखो? बोलो, फटाफट बोलो। अच्छा, बोलना है। आप बोलोगे कि हम बोलोगे तो मेरे को सुनाई कैसे देगा? भाई वो मेरे पे छोड़ दो, आप दिल से बोलोगे, मेरे दिल तक पहुंचेगा, है ना। और आपकी बात मेरे दिल तक पहुंचाने के लिए सिर्फ अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे, हरा भरा सेशन है, कलरफुल सेशन है ना, सो इसको एक लाइक स्ट्राइक कर देना। आप लाइक करोगे उसका मतलब आपका अटेंडेंस हो गया, तो अपना अटेंडेंस करवाने के लिए सिर्फ एक लाइक पे प्रेस कर देना, है ना। चलिए, तो दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अभी अपने को क्या करना है? अभी भाई अपने को ये चाहिए कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम t, करेक्ट। हाँ, तो ये जो पॉइंट है, मैथमेटिकली तो आप मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट हो, तो इस पॉइंट से पास होती हुई लाइन अच्छे से ड्रॉ करना, इसको बोलते हैं टेंजेंट। और ये जो स्लोप आएगा, द वैल्यू ऑफ दिस स्लोप गिव्स RINST, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। so it's like plus dp by dt is equal to प्लस, बोलो क्या लिखूं? लिख सकते हैं ऐसा? नहीं लिख सकते। मैं बोल रहा हूं, आप हा हा करके बोल रहे हो, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज इट्स नॉट एन इंटरवल। सो प्लस का वैल्यू क्या आएगा? प्लस स्लोप। So this is the answer. Average rate of reaction equation and instantaneous rate of reaction. करेक्ट। अच्छा, आपको ये अलग अलग पेन कलर के पेन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पेन नोट में आप कर सकते हो, टेस्ट एग्जाम में ओनली एंड ओनली ब्लू, क्योंकि अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, फोकस आपको आपके कंटेंट पे करना है, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया लगता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज अबाउट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ इट्स अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। गिव द इक्वेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बिलो गिवन रिएक्शन। सो यहां से अपन रिएक्शन का प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन का प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। चलिए, सो पहला रिएक्शन तो अपन ने देख लिया। कौन सा रिएक्शन देखा? R कन्वर्ट्स इनटू P। हाँ, सो अभी इसके लिए आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन कैसे देखो? RAV इज इक्वल टू माइनस डेल्टा R, दिस इज termed as a decrease in concentration of reactant with respect to time. Now again this is termed as an increase in concentration of reactant with respect to time। बस तो हो गया ये, as simple as that। अभी एक रिएक्शन लेते हैं, A plus B, it converts into C plus D।
करेक्ट, A and B are reactant, C and D are product, है ना. Now, अच्छा, all the reactants and product in this case is 1 mole. Concentration of reactant and product is equal to 1 mole. तो इसका अभी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखेंगे. आर ए वी इज इक्वल टू माइनस एज यूजुअल डेल्टा ए बाय डेल्टा टी. जितना ए यूज होगा भाई उतना ही तो बी भी यूज होगा, है ना. तो क्योंकि दोनों रिएक्ट तो कर रहे हैं, एक्टिव रिएक्टेंट है दोनों, इज इक्वल टू प्लस डेल्टा, अरे डेल्टा सुंदर बनाना है, हैंड राइटिंग एकदम आपके सुंदर होने चाहिए, देखने में मजा आए, है ना. प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी. अच्छा, और अभी अगर अपन बात करें डी की, तो आपको दिख रहा है ना, लेट मी चेक, यस इट्स विजिबल, इज इक्वल टू, मैं एक काम करता हूँ यहाँ, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लेते, प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, है ना. तो this is known as a rate of reaction with respect to reactant and product if the concentration of reactant and product is equal to 1 mole. But now what if the concentration and reactant is not equal to 1 mole? माने जब अपन रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो क्या सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 मोल होता है? नहीं होता है. A, B, C and D are stoichiometric coefficient of reactant and product respectively. तो अब इस stoichiometric coefficient को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वेशन में इन्वॉल्व करना पड़ेगा. 1 अपॉन लिख दो, मतलब एक के डिनोमिनेटर में चला जाएगा ये, करेक्ट. सो इट्स लाइक 1 बाय बी, और यहाँ पे भी आएगा 1 बाय सी, और यहाँ आएगा 1 बाय, यस 1 बाय डी, करेक्ट. चलो अभी ये तो हो गया भाई जनरल रिएक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिएक्शन ऑफ वर्ल्ड, ऑफ यूनिवर्स, हेबर प्रोसेस. नींद में से उठाओ तो भी बैलेंसिंग के साथ अपन ने रट्टा लगा लिया इसका. N2 plus 3H2 it converts into 2NH3, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. यहाँ टेम्परेचर कंडीशन सब लिखने की जरूरत नहीं. चलो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, बोलते जाओ मेरे साथ, आर ए वी, यस बोलते जाओ, आर ए वी इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखो, डेल्टा N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस 1/3. अरे बोला, बोलते जाओ, फिर भी नहीं बोल रहे हो. माइनस डेल्टा, हाँ, डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T एंड इज इक्वल टू प्लस 1/2. हाँ, आगे डेल्टा तो लिखना पड़ेगा, बोलते बोलते लिखना भूल नहीं जाना है. डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T. So this is about the average rate of reaction. चलिए एक इक्वेशन में आपको देता हूं, वर्क फ्रॉम होम. ये होमवर्क का नया नाम है ना, अपने से खुद से काम करना. कौन सा रिएक्शन, NH3. This reaction is actually one of the most important step of Ostwald reaction for the preparation of nitric acid. Correct. So NH3 plus oxygen, it converts into NO, nitric oxide plus H2O. और इस रिएक्शन के बैलेंसिंग आपको याद अगर रखना है तो नंबर याद रखना 45 46. 45 में सारे रिएक्शन बैलेंसिंग के साथ उतरवा दूंगा यहाँ पे, इतना याद रखना. तो 45 46. अब आपको क्या करना है, इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है. और अगर आपको ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है तो कमेंट में लिख देना कि यस क्वेश्चन नंबर 6 डन, क्वेश्चन 6 डन, क्वेश्चन 6 नंबर 4 डन. करेक्ट. और कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माय इंस्टा एंड टेलीग्राम हैंडल given link in the description box. Now let's move towards the handwritten notes. तो ये लो जी, ये हो गए आपके handwritten notes. सिंपल रिएक्शन है और कुछ है नहीं, और वो जो होमवर्क में दिया वो तो आपको खुद से करना है. करेक्ट. चलिए क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. प्रीवियस क्वेश्चन के मार्क्स देखिए, अगर ये आता है तो जनरली ये एमसीक्यू या 1 मार्कर के फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना नहीं, इसमें सिर्फ आपको डेल्टा आर बाय डेल्टा टी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हिसाब करना, लिखना है, प्रेजेंट करना है. करेक्ट. नाउ रेट लो, गिव द एक्सप्रेशन ऑफ रेट लो फॉर बिलो गिवन रिएक्शन. सो अब पहली बात तो ये कि रेट लो की जरूरत क्यों पड़ी, और ये रेट लो की जरूरत है वो अपने को इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट एरिया पे लेकर जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड order of reaction. That is one of the most important parameter for defining or for calculating the rate of reaction and rate constant. Correct. Now सबसे पहले तो वही आएगा कि भाई रेट लो का स्टेटमेंट क्या होगा, लेकिन वो तो अपने को याद नहीं है और ना ही करना है. अपने को क्या करना है,
पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर आऊंगा मैं रेट लो पे, फिर मैं वापस आऊंगा। करेक्ट, वही एग्जांपल ले लेते हैं भाई। ए plus B, A and B are reactant and capital C, capital D are product. Small a, small b, small c, D is the stoichiometric coefficient of A, B, C, D respectively. करेक्ट, चलिए अभी इसका इंस्टेंटेनियस रेट लो माने अपने को क्या लिखना है, इसका अपने को रेट लॉ लिखना है, रेट लॉ लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन इज सिंबलाइज्ड एज स्मॉल r। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखो तो आप कैसे लिखोगे, कुछ आप इस तरीके से लिखोगे भाई 1 by a, इंस्टेंटेनियस बोला है ना, so it's also known as differential, so dA by dt is equal to minus 1 by b, it's like dB by dt। अच्छा, अभी इसमें प्रोडक्ट को इन्वॉल्व नहीं करना है, क्यों? क्या होता था कि कोई कोई लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कोई कोई जगह कोई कोई लैब में कोई कोई साइंटिस्ट निकालते थे विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। अब अगर एक ही रिएक्शन के लिए मैंने रिएक्टेंट के लिए निकाला, आपने प्रोडक्ट के लिए निकाला, मैं आपसे फोन कर रहा हूँ, बोलो भाई जवाब क्या आ रहा है, तो आपका आंसर अलग होगा, मेरा अलग होगा, तो हार्मोनाइज वे में काम करना पड़ेगा। और रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन फिक्स है, धीरे 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 वो डिक्रीज हो रहा है, तो इजीली अपन मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए रेट लॉ ने क्या बोला कि भाई प्रोडक्ट को साइड पे हटा दो, अभी से सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे फोकस करो। लेकिन ये जो लिखा है, दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इट्स नॉट एक्चुअली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट लॉ। तो अभी रेट लॉ का रिप्रेजेंटेशन क्या है? सी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हम इक्विलिब्रियम के चैप्टर से जानते हैं। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देना है तो वहां पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, and this is known as proportionality constant K. K for Kunal. ना K for rate constant. Without K आपको केमिस्ट्री में चलेगा नहीं भाई, रेट कांस्टेंट के बिना चलेगा नहीं, है ना। तो concentration of A something raised to its exponent x into concentration of B something raised to its exponent, and it's called y. Now what is x and y? X and y is order of reaction, which is most important 3 marker question. Order of reaction with respect to A and B respectively. लेकिन अभी अपन order of reaction की बात नहीं कर रहे, we are talking about rate law. See, this is the expression of rate law. अभी आप बोलोगे कि x और y कहां से आ गए भाई, ऊपर तो A and B है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x को A से कोई लेना देना नहीं है। It can be equal, it cannot be equal. करेक्ट, हाँ, अगर इक्वल हो गया सो इट्स जस्ट कोइंसिडेंस, वहां पे कोई रूल नहीं है, और ना ही y को b से लेना है। उसका मतलब ये जो x एंड y मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा है, एक्सपोनेंट में जो वैल्यू लिखा है, that can be equal to stoichiometric coefficient, that cannot be equal to stoichiometric coefficient, means it do not relate with stoichiometric coefficient of reaction। चलिए बस, तो भाई ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट किया ना, दिस इज नोन एज रेट लॉ। तो अब बताओ रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या होगा, व्हाट इज रेट लॉ? चलिए अपन हैंड रिटन आंसर पे चलते हैं। व्हाट इज रेट लॉ, ध्यान से देखना, ये रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। देखो मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं वो पिकअप वर्ड है, जो कोई भी पेपर चेकर चेक करता है। Reaction rate is given in terms of molar concentration of reactant with each term raised to some power, either x or y or z, any value, raised to some power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient of reacting species reactant in balanced chemical reaction. Balanced chemical reaction में जो stoichiometric coefficient है उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट भाई, ये तो हो गया डेफिनेशन और जनरल एग्जांपल, जनरलाइज एग्जांपल। चलिए अपन अभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, क्योंकि ऊपर लिखा है कि आपको कुछ नीचे रिएक्शंस दिए हुए हैं, उसका आपको रेट लॉ डिफाइन करना है। करेक्ट, सो नंबर 3, चलो एक रिएक्शन है 2NO, NO बोले तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस O2, इट कन्वर्ट्स इनटू NO2, NO2 बोले तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसका भाई NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसका रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है, बोलो कैसे लिखोगे? R इज इक्वल टू, देखो अभी मैं वो इंस्टेंटेनियस वाला नहीं लिख रहा हूँ, करेक्ट, हो सकता है आपका एमसीक्यू में इंस्टेंटेनियस साथ में दिया है तो भी कोई इश्यू नहीं, फाइन। R इज इक्वल टू K इंटू NO रेज टू X इंटू O2 रेज टू Y। अब आप बोलोगे X और Y हम कहां से लाए, उसका कैलकुलेशन कैसे करें? मेरे भाई उसका कैलकुलेशन नहीं हो सकता,
बिकॉज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ये अपन जब एग्जांपल करेंगे तो उसमें देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक ही एक्सपेरिमेंट में अलग अलग टाइम पे कंसंट्रेशन और टाइम के डेटा से निकाला जाता है। इट्स प्योरली एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। फोर्थ रिएक्शन, कुछ मैं आपको एग्जाम होमवर्क में भी दूंगा। करेक्ट, चलिए। N2 plus 3H2 it converts into 2NH3, है ना। so now R is equal to K into, again मैं वही बोलूंगा, N2 raised to X into H2 raised to Y। X and Y stoichiometric coefficient, no, order of reaction with respect to reactant N2 and Y2। तो अब हमने यहाँ से प्रोडक्ट की जो बात थी वो कंप्लीटली भगा दी। एक और रिएक्शन मैं बैलेंसिंग के साथ लिखता हूँ, जनरली ये आपको बैलेंसिंग के साथ दिया होगा। BrO3 - 1 प्लस 6H प्लस, ये बहुत बड़ा रिएक्शन, इसको कर लिया, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, है ना। Br2 प्लस 3H2, चलिए पहले इसको लगा देते हैं। तो क्या होगा, R इज इक्वल टू K इंटू Br माइनस रेज टू 5 रेज टू X इंटू BrO3 -1 रेज टू Y। ये H प्लस होना चाहिए, H प्लस माइनस किसने किया था, प्लस होना चाहिए, H प्लस रेज टू Z। So what is X, Y and Z? It's order of reaction with respect to Br minus BrO3 minus 1 H plus with respect to reactant, correct, respectively, fine। So these are the 5 reaction। इतने रिएक्शन से आपको क्लियर हो चुका होगा कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 के हैंड रिटन नोट्स टॉप एंड राइट, और इवन यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट, करेक्ट। लेकिन जैसे रन हो रहा है वैसे साथ साथ में लिखते जाओगे तो साथ साथ में याद भी होता जाएगा। इतने सारे रिएक्शन है, इसका आपको रेट लो लिखना है 1 to 12। और जैसे आप एक बार रेट लो लिख दो सुंदर अक्षरों में, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 7 डन, क्वेश्चन नंबर 7 डन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इट्स प्योरली अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इसमें से क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। हाँ, लेकिन एक और बात, मैंने मार्क्स बोले थे प्रीवियस क्वेश्चन में, लेट मी चेक। देखो ये रेट लो का जो नहीं, देखो ये जो रेट लो है उसका जो पूरा का पूरा डेफिनेशन है, मान लो वो अगर आप 1 मार्क में गिन लो और इसमें से कोई 2-3 इक्वेशंस आपको दिए हो करने के लिए, तो वो 1 मार्क में और गिन लो, तो ये मैक्सिमम 2 मार्क्स में हो सकता है, उससे ज्यादा में ये कभी नहीं। करेक्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला कि इट्स नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Which are the factors that, this is actually the second area of chemical kinetics definition, factors affecting on rate of reaction। See, there are basically 4 to 5 factors, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ अपने सिलेबस में जो 4 to 5 बेसिक फैक्टर दिए उसी की अपन बात करेंगे। सबसे पहले आएगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हीरो है किसी भी रिएक्शन का। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में अपन दो चीज पे फोकस करेंगे। एक तो स्टेट ऑफ रिएक्शन, स्टेट मतलब कौन सा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ना 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 ना, वो नहीं। स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट मींस either it can be available, either reactants can be available in gaseous form or reactant can be available in liquid form or the reactant in available in solid form। तो ये इन तीनों में से कौन से स्टेट में रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम मिलता है, तो भाई गैसियस स्टेट में, क्योंकि गैसियस स्टेट में सरफेस एरिया मैक्सिमम रहता है। एक और बात है, गैसियस स्टेट में मिक्सिंग बहुत इजीली होता है और जितना ज्यादा मिलन होगा, मिक्सिंग जितना ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। तो gaseous reactant gives the faster reaction than liquid and liquid gives faster reaction than solid। solid में diffusion और mixing जो है बहुत ही ना के बराबर होता है। चलो इसमें एक और पॉइंट है and that is called stability of reaction, stability of reactant। अब ये stability of reactant क्या होता है समझ लो। मान लो कि अपने को बोला है कि भाई आपको एसिड स्ट्रेंथ डिफाइन करना है, भाई किसका डिफाइन करना है, तो आपको HF और HI का एसिड स्ट्रेंथ डिफाइन करना है। अब बताओ इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन, अब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जो H प्लस इजीली रिलीज कर दे और वही फास्ट रिएक्शन देगा। अब F का जो साइज है वो छोटा है, तो H और F का जो बॉन्ड लेंथ है वो, और HI का जो साइज है वो थोड़ा सा लंबा है, तो HI का जो बॉन्ड लेंथ है वो भी लंबा होगा, बिकॉज साइज इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। तो बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ये जो बॉन्ड है वो वीक होगा, और जितना बॉन्ड वीक होगा
उतना ये इजीली ब्रेक हो जाएगा और उतना ही ये इजीली H+ रिलीज कर देगा। अच्छा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ HF रिलीज नहीं करेगा, HF भी H+ तो रिलीज करेगा बिकॉज अगेन इट्स एन एसिड, लेकिन इजीली कौन रिलीज करेगा? HI। क्यों? वीकर बॉन्ड। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड किसके पास है? HF के पास। So can I write stability of HF is higher, stability of strength of bond is directly proportional to, now it's inversely proportional to rate of reaction, that's all. So this is called the area stability of reactant. सेकंड फैक्टर, हाँ सेकंड फैक्टर पे चलते हैं। चलो सेकंड फैक्टर इज अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। भाई बहुत सीधा सा हिसाब है, आप जितना बर्नर ज्यादा तेज करोगे, हीट ज्यादा दोगे, जितना मिल्क ज्यादा होगा, चाय पत्ती ज्यादा होगा, उतना ही चाय ज्यादा अमाउंट में बनेगा। जितना बर्नर फुल ऑन रखोगे उतना ही जल्दी होगा। सो व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट? आप बोलोगे बर्नर की बात क्यों कर रहे हो? इन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट एक्ट्स एज रिएक्टेंट। तो बर्नर जितना तेज है उसका मतलब आप रिएक्टेंट ज्यादा दे रहे हो। तो इट्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बहुत सीधा सा सिंपल सा हिसाब है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। जितना रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतना ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा स्पीड पे भागेगा। सीधा सा हिसाब है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू लॉ-सेट्रियल प्रिंसिपल, यूनिट नंबर 7 इक्विलिब्रियम, नंबर 3 टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर के हिसाब से all the reactions can be subdivided into two parts. One that release heat, called heat release, मतलब heat exit हो रहा है, so that reaction is called exo, exit से word है exo, exothermic reaction, exothermic reaction, ठीक है। and endothermic reaction, endothermic, अब endothermic reaction किसको बोलोगे भाई? इसका उल्टा, the reaction making of tea is endothermic reaction, है ना। एंड स्पार्कलिंग ऑफ सोडियम, सोडियम मेटल, प्योर सोडियम मेटल को अगर थोड़ा सा पानी में डालोगे, इतना छोटा सा टुकड़ा डालना, तो स्पार्कलिंग होगा। तो दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थोड़ी देर में पानी, अगर थोड़ा सा भी ज्यादा सोडियम होगा, पानी बहुत कम लेना, चुटकी भर पानी लेना, छोटा सा, तो क्या होगा कि वो पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? R कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट प्लस हीट, यस। और क्या मैं एंडोथर्मिक का ऐसे लिख सकता हूँ? R प्लस हीट, because without heat endothermic reaction will not start. अपन ने एग्जांपल लिया मेकिंग ऑफ टी, तो R प्लस हीट इट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। अब अगर यहाँ पे हीट कहाँ पे, कौन साइड है? प्रोडक्ट साइड है। तो अगर आप हीट इंक्रीज करोगे, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज होगा और रिएक्शन बैक डायरेक्शन में भागेगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये अपने लिए बेनिफिशियल है? नहीं, ये अपने लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द रेट ऑफ, तो टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर एंड रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। एंड अगर यहाँ पे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिएक्टेंट का अमाउंट इंक्रीज होगा, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ-सेट्रियल प्रिंसिपल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, जो अपने लिए बेनिफिशियल। तो इन एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, दैट्स ऑल अबाउट द टेम्परेचर। करेक्ट। चलिए फोर्थ फैक्टर पे चलते हैं। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। देखो बहुत सीधा सा हिसाब है, जितना कांटेक्ट ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, मैंने बोला रिएक्टेंट जीरो है किसी भी रिएक्शन में। अब जितना कांटेक्ट ज्यादा होगा, संपर्क जितना ज्यादा होगा, उतना ही रिएक्शन, मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूं, उतना ही रिएक्शन ज्यादा होगा। तो सरफेस एरिया का एक एग्जांपल लेते हैं। आपको एक बड़ा सा लकड़ा दे दिया कि भाई जाओ इसको बर्न करो, करेक्ट, और उसी लकड़े के छोटे छोटे टुकड़े दे दिए, कौन इजीली जल्दी बर्न हो जाएगा? छोटे 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 टुकड़े बर्न हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज उनका सरफेस एरिया ज्यादा है। कैन आई राइट सरफेस एरिया is directly proportional to rate of reaction. That's all about the surface area. एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जब भाई आयरन पाउडर gives more efficient catalytic activity than iron lump, lump मतलब बड़े बड़े टुकड़े। नंबर 5 कुल दीपक, कैटलिस्ट, कुल को आगे बढ़ाने वाला, कुल दीपक रिएक्शन को आगे बढ़ाने वाला कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, at least
इसका एक बहुत डिटेल क्वेश्चन आगे आएगा, तो इसमें सिर्फ 2-3 पॉइंट पे ही अपन बात करेंगे। इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी और डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, decreasing activation energy gradient of reaction, correct, and catalyst decrease the time required to reach the equilibrium, करेक्ट। कैटलिस्ट जो ये भी सब काम करता है, वो कैटलिस्ट मेन एरिया ये है एक्टिवेशन एनर्जी, वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को टारगेट करता है, और एक्टिवेशन एनर्जी का जो ग्रेडियंट है, पहाड़ है, उसको धड़ाक से नीचे ला देता है। अब कैसे नीचे लाएगा वो अपन कैटलिस्ट वाले एरिया में देखेंगे। So that is about effect of catalyst on rate of reaction, correct. Don't worry, ये जो सेशन है वो अपन 1 आवर से ज्यादा कंटिन्यू आगे नहीं जाएगा। So again this is the handwritten note, you can stop and write and also you can take a screenshot, लेकिन जो आप स्क्रीनशॉट ले उसमें ध्यान रखना क्वेश्चन के साथ स्क्रीनशॉट आए और उसके नंबर भी दे देना। चलिए, so that is about catalyst, correct, and move towards the next question, order of reaction, one of the most important question। अच्छा, ये जो अपना था लास्ट क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन, हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें से 1 मार्कर 2 मार्कर भी हो सकता है कि भाई ये फैक्टर क्या इफेक्ट करता है वो बताओ। मैक्सिमम ये 2 मार्कर से ज्यादा में नहीं होगा, क्योंकि इस चैप्टर में और भी ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो 3 मार्क और 4 मार्क में हो सकते हैं। उन्हीं में से एक क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, one of the most important parameter for defining any reaction in chemical kinetics, और order of reaction पे MCQ एग्जाम्पल आता है और आता है, ये आप लिख के ले लो स्टैम्प पेपर पे, है ना, मेरा साइन करवा लेना। चलिए, बट एज द टाइम डू नॉट अलाउ, इट्स ऑलरेडी 55 मिनट, और मैं समझ सकता हूँ कि आपका भी कैपेसिटी नाम का एक चीज होता है, दैट इज एक्चुअली नोन एज टॉलरेंस लिमिट, है ना, तो उससे ज्यादा अपन किसी मूवी को नहीं टॉलरेट कर सकते। और वैसे भी आज का जनरेशन क्या है कि कोई भी चीज में कंटिन्यूअस बैठना मुश्किल है, क्योंकि हम बहुत क्रिएटिव है, वी आर वेरी वेरी क्रिएटिव, मल्टी टैलेंटेड, तो हमें ऐसा नहीं एक टाइम पे एक ही बंदे को सुनना है, हमें बहुत काम करने होते हैं, तो बहुत काम करने हैं, तो इस सेशन को खत्म करना पड़ेगा यहाँ पे। आई होप दिस सेशन विल डेफिनेटली गिव यू अ बूस्ट इन योर मार्क्स, आपको मजा आया होगा, जो भी आया है या नहीं आया है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, सजेशन जो आपके हैं, you can write in comment box and personally you can contact me on my Insta handle and Telegram handle। हाँ, इंस्टा पे मैं ज्यादा नहीं, लेकिन 2 और 3 टाइम्स इन अ डे मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा एजुकेशनल हैंडल है, करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, मस्त रहो, व्यस्त रहो, जबरदस्त रहो, गुड बाय।